امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت کے لیے اگلے 48 گھنٹے اہم۔ امریکہ کو اگلے 2 دن میں ایران کی جانب سے جواب ملنے کی امید۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق امریکہ اور ایران ایک صفحے پر مشتمل MOU کے قریب پہنچ گئے ہیں، جس کے تحت مستقل جنگ بندی اور جوہری مذاکرات کا فریم ورک تیار ہوگا۔ امریکہ ایران مذاکرات جلد دیر پا امن میں تبدیل ہوں گے اور مزید جانیں ضائع نہیں ہوں گی۔ پاکستان نے ثالثی میں تاریخی کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل ان تھک دن رات کاوشوں سے فریقین کو مذاکرات کی میز پر لائے ہیں۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ سعودی اور چین کے کردار کی تعریف۔ محمد بن سلمان کے کردار کو خراج تحسین۔ آزمائش کی گھڑی میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں نئی تاریخ رقم ہوئی۔ وزیر اعظم نے ارض مقدس کا تحفظ دفاعی معاہدے کی بنیاد قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کا امریکی صدر کی جانب سے آبنائے ہورموز میں پروجیکٹ فریڈم روکنے کا خیر مقدم۔ تنازع کے پرامن حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ امید ہے کہ تازہ ترین پیش رفت خطے میں دیر پا امن و استحکام کے معاہدے میں منتج ہوگی۔ شہباز شریف نے ٹرمپ کا اقدام جرأت مندانہ قرار دے دیا۔ پاکستان اور دیگر ممالک کی درخواست پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے ہورموز میں فوجی آپریشن عارضی طور پر روکنے کا اعلان۔ پروجیکٹ فریڈم معطل، ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رہے گی۔ ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ حتمی معاہدے کے لیے نمایاں پیش رفت کا دعویٰ۔ کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ معاہدے کو حتمی شکل دے کر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ ایرانی صدر کا امریکہ کو دھمکیوں سے باز رہنے کا پیغام۔ واضح کیا کہ جبر کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ عراقی وزیر اعظم سے گفتگو میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکی مطالبات ناقابل قبول قرار دے دیے اور کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران مذاکرات کی میز پر آئے اور اس کی یک طرفہ شرائط مان لے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بیجنگ میں چینی ہم مذہب سے ملاقات۔ چینی وزیر خارجہ نے امریکی اور اسرائیل کی ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں غیر قانونی قرار دے دیں۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے براہ راست مذاکرات ضروری۔ چینی وزیر خارجہ کا امریکہ سے فوری جنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ ایران سعودی وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کی مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے مختلف تجاویز پر گفتگو۔ Ducks. They're isolated, they're starving, they're vulnerable, and at least 10 sailors have already died as a result of the civilian sailors. So already many nations privately and some publicly have asked the United States to help free their ships and to restore freedom of navigation in the Straits of Hormuz and this critical artery of global trade. آپریشن ایپک فیوری مکمل ہو چکا۔ جیریڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف مذاکرات پر کام کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا ایران کو حقیقت تسلیم کر کے مذاکرات کی میز پر آنے کا مشورہ۔ کہا کہ آبنائے ہورمز میں تصادم کے دوران 10 عام شہری ہلاک ہوئے۔ امریکی فوج کے لیے خطرہ بننے والے ڈرونز اور بوٹس کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آبنائے ہورمز پر ایرانی کنٹرول ناقابل قبول قرار۔ مشرق وسطی میں ایک بار پھر امن کی امیدیں روشن۔ تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی آنے لگی۔ برینٹ کروڈ تقریباً $7 کروڑ کی کمی سے $102 فی بیرل پر ٹریڈ ہونے لگا۔ WTI بھی 7% سے زائد سستا، $95 فی بیرل پر فروخت۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کا آبنائے ہورمز میں ایک اور بحری جہاز پر حملے کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق کارگو جہاز کو نامعلوم پروجیکٹائل سے ٹارگٹ کیا گیا۔ فوری طور پر نقصان کی تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں۔ متحدہ عرب امارات نے دوسرے روز میزائل اور ڈرونز کے حملوں کا دعویٰ کر دیا۔ فضائی دفاعی نظام نے ایران کی طرف سے آنے والے میزائلز اور ڈرونز کو روکا۔ اماراتی وزارت دفاع کا ایکس پر پیغام۔ UAE نے ایران کو جاہرے امن کے لیے خطرہ اور بحران میں اضافے کا ذمہ دار قرار دیا۔ اماراتی صدر کے مشیر انور قرقاش کے مطابق خلیجی اور عرب ممالک سمیت عالمی برادری کے ایرانی حملے کی مذمت UAE کے موقف کی توثیق کرتی ہے۔
तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने वाज़ेह किया कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमारात के ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ने अमाराती वज़ारत दिफा का बयान मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद करार दिया। तर्जुमान के मुताबिक UAE को अमरीकियों और सहूनियों के लिए पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। अमरीकियों और सहूनियों की पनाहगाह बनना इस्लामी दुनिया को धोखा देने के मुतरादिफ होगा। पॉप लियो ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद एक बार फिर मुस्तरद कर दी। अमन का तबलीग करना चर्च का अपना मिशन करार दे दिया और वाज़ेह किया कि तनकीद की परवाह नहीं। चर्च ने हमेशा एटमी हथियारों के खिलाफ बात की है। हथियार उठाने की बजाय मुज़ाकरात करना बेहतर होता है। जंग के जरिए हथियार साजी की फैक्ट्रीज अरबों डॉलर्स कमा रही हैं। पैसा जंग पर खर्च करने की बजाय इंसानों की मदद और दुनिया से भूख के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाए। The most climate vulnerable countries in the world, facing increasingly severe floods, heat waves, water stress, and dangerously poor air quality. डॉन मीडिया के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में ब्रीथ पाकिस्तान आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस CEO डॉन मीडिया ग्रुप नाज आफरीन सहगल लाखानी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसानात पर रोशनी डाली। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान को तेजी से बढ़ते हुए माहौलियाती चैलेंजेस का सामना है। Flood आया, was a devastating flood 25 पिछले साल अक्टूबर में। We again had to realize the consequences of the flood. 2022 के सैलाब ने पाकिस्तानी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मौसमियाती तग़य्युर के नुकसानात से बचाव के लिए अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। ग्रीन इकॉनमी की जानिब से मुंतकिल होना वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। ब्रीथ कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान ने बेपनाह नुकसान उठाया। वाज़ेह किया कि माहौलियाती तब्दीली के असरात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान तो सिर्फ 1% कार्बन पैदा करता है। हक हमारे लिए सिर्फ एक यादगार वाक़या ही नहीं, बल्कि ये एक लकीर है कि जो कुछ आपने उस वक्त देखा उसमें हमारा ज़ब्त व तहम्मुल शामिल था। अगर आइंदा कभी हमारे बारे में कोई गलत अंदाज़ा या मिस कैलकुलेशन की गई तो हमारा रद्द अमल इससे भी कहीं ज़्यादा शिद्दत से और फैसला कुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मार्का हक पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बरतरी और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिले तरदीद सबूत करार दिया और वाज़ेह किया कि मार्का हक की अजीम फतह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया। मार्का हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। मार्का हक से वाज़ेह हुआ है कि आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने वाज़ेह किया कि मार्का हक एक दिन मनाने की बात नहीं। भारत ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया था। भारत ने बगैर शवाहिद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया और सवाल उठाया कि भारत इंसाफ के उसूल के मुताबिक पहलगाम वाक़े को बैनुल-अक़वामी अदालत क्यों नहीं लेकर गया। फील्ड मार्शल का दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे, उनके मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी शरअंगेज कार्रवाई से महसूस बनाने के लिए मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखने की हिदायत। अफगान तालिबान रजीम की गैर मंतकी और गुमराहकुन पॉलिसी के तहत खारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनाहगाहें फराहम की जा रही हैं। अफगान तालिबान का शहरियों को निशाना बनाने का गुमराहकुन बयानिया मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया। पूरे जश्न को जो है वो एक जश्न की तरह मनाया जाएगा। 8 और 9 मई की जो रात है उस दिन एक कॉन्सर्ट भी जो है वो लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर एक बड़ा कॉन्सर्ट किया जा रहा है।
पंजाब में 8, 9 और 10 मई को मार्का हक के हवाले से तकरीबात का ऐलान। 8 और 9 मई के लाहौर के लिबर्टी चौक पर कॉन्सर्ट होगा। 10 मई को तकरीब में मरियम नवाज शरीक होंगी। वजारत इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का ऐलान। की हर चाल, हर फरेब हमारे पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम सरहदों से दूर मगर दिल से करीब हैं। हम जहाँ भी हो पाकिस्तान हमारी पहचान है। हमारा लहू हमारी जान वतन के नाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्क से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। दुश्मन की कोई भी चाल, कोई फरेब या धोखाधही पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर मुश्किल और हर तूफान में मुल्क के साथ खड़े हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैगाम। भारत की इबरतनाक शिकस्त का 1 साल मुकम्मल। मार्का हक के मुनासबत से तकरीब का प्रोमो जारी। तो याद रखें कि एडवांस से जारी प्रोमो में मार्का हक की कामयाबियों को उजागर करके कौमी जज्बे को गरमाया गया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में जश्न फतह की पुरवकार तकारीब का सिलसिला जारी। पाक फौज और इस्लामिया कॉलेज पेशावर के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद। असातिज़ा और तलबा ने खिलाड़ियों को खूब दाद दी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से ग्राउंड्स गूंज उठे। बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन की नमाज़े जनाजा FC बलूचिस्तान नॉर्थ के हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। आला सियासी शख्सियात, अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन को अपने आबाई इलाके में मुकम्मल एजाज़ के साथ सिपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 4,400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,68,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला अदालतें हैं। विफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। विफाकी आईनी अदालत के दायरे अख्तियार पर तफसीली फैसला जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वफाक के मुताबिक इम्तियाजी सलूक के खिलाफ 1 दिन की कलम छोड़ हड़ताल। बेशतर महकमों में सरकारी उमूर ठप। वफाक के तहत आईनी और मुआशी मामलात पर स्पीकर की ज़ेर सरबराही कायम कमेटी, वज़ीर तालीम, वज़ीर कानून, मुशीर खजाना और अपोजिशन लीडर भी कमेटी का हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी तक ज़ाती मुआलज की रसाई और फैमिली मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल अदालत के सामने पेश नहीं हुए। मंगल को दोबारा सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल तलब। बुशरा बीबी की तिब्बी हालत और जेल मुलाकातों के हवाले से तफसीलात तलब कर ली गईं। पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो गया। 3,000 से ज़ायद मराकज़ सेहत का स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने के हेल्थ कल्चर तब्दील हुआ। पंजाब के पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल मरीज बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। वज़ीर आला पंजाब की अरकान असेंबली से गुफ्तगू। पाकिस्तान का मजीद LNG के लिए स्पॉट की खरीदारी का फैसला। आलमी कंपनी से 2 LNG कार्गोज के लिए बोलियां तलब कर ली गईं। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने 7 मई तक बोलियां तलब की। उसी दिन बोलियां खोली जाएंगी। पहले कार्गो की सप्लाई 12 से 14 मई तक रखी गई है। दूसरे LNG कार्गो की सप्लाई 24 से 26 मई के लिए होगी। कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती होने का इम्कान। बिजली सार्फिन को 63 अरब 94 करोड़ रुपए के रिलीफ के लिए नापरा में दरख्वास्त दायर। नापरा की जानिब से दरख्वास्त पर 19 मई को समाअत होगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस ने वाक़या टारगेट किलिंग का नतीजा करार दिया। लाश और जख्मी जना अस्पताल मुंतकिल। क्वेटा में पुलिस की फायरिंग से कार सवार नौजवान की हलाकत के केस में 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े की इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। कराची में ऑनलाइन मुनशियात फरोशी का बड़ा नेटवर्क फाल होने का इंकशाफ। मुनज़्ज़म नेटवर्क का दायरा कारपोश इलाकों तक फैल गया।
बरसों से बंद डेरा इस्माइल खान एयरपोर्ट बहाल हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी और वजारत दिफा को खराज तहसीन। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी आने लगी। महकमा मौसमियात की आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में गर्मी की शदीद लहर। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म रहने। पंजाब में गर्म मौसम के साथ गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। सिंध में 11 मई तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने सिंध के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। दादू, जैकबाबाद, लाड़काना और सखर में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। यूएई की रियासत रासुल खैमा के बुलंदबाला पहाड़ों पर पाकिस्तानी नौजवान ने जाल पर खेलकर फिलिपाइनी खातून की जान बचा ली। पाकिस्तानी गाइड फैसी शिलमानी गर्मी की शिद्दत से बेहोश होने वाली फिलिपाइनी खातून को 3 घंटे तक कांधों पर उठाए चलकर पहाड़ से नीचे उतार लाया। और चीन के शहर शियानिंग में रंगारंग नाइट शो, ड्रोन से आसमान जगमगा उठा। रिवायती फूलों से सजे अफराद और लालटेन उठाए गार्ड्स ने झील के किनारे परेड की। फनकारों की परफॉर्मेंस से समा बन गया।